Hello, good morning, everyone. I hope I'm audible. All right. Thank you so much. We'll wait for 2 more minutes and then we'll begin the session. Um, I'll try to extend the session till 9:30 a.m. so that I can cater to most of your doubts. So there are multiple doubts that have been raised on the channel group, as well as you personally. You can also ask me doubts. All right. So simply, if you want to ask your doubt, you can just raise your hand, and we'll start interacting on a one-to-one basis. And if your doubt has been addressed by a common doubt, you can avoid asking that again. Okay. So just raise your hand. I'll ask each one of you to unmute yourself, and then we'll cater to the doubts. And once we are done with the doubts of the people who are attending the session, I'll take the doubts which have been raised on the group. All right. Let's wait till 8:35. You can just raise your hand if you have some doubt. All right. One by one, I'll just ask you to unmute and we can start that. All right. And also just briefly give your introduction, and introduction per se is your UPSC journey. So what are the number of attempts that you have made? Uh, since how long you are been preparing for UPSC, and what is your target attempt? Have you cleared prelims, mains, etc.? So that my advice will become more specific based on your circumstance, right? So I think let's start. HK, I'll first unmute you and you can ask her. Yes, HK. Yes, good morning, sir. Yes, sir, 2025 will be my third attempt. I have been preparing since then, and I have done masters as well. So, my doubt is regarding especially in paper one, sir. Apart from the PYQs or for say mocks, especially for numericals, did you opt for some other sources to practice the numericals, and also the timing management wala issue, how you uh, manage it well? Okay, so but 2025 will be your first attempt, third attempt. No, sir, it will be third. अच्छा, आप have you given mains पहले? Sir, not yet. Actually. कोई बात नहीं. तो जैसे पेपर वन में क्या रहता है, प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यूज तो मेन सोर्स है ही कॉमर्स में, उसको तो Okay. आपको एकदम मास्टर करना है, Okay. राइट? तो उनको तो आपको अच्छे से करना है, और उस पैटर्न के आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले तो बहुत अच्छा है. ठीक है. अब Okay. एक तरीका ये होता है इसमें कि आप जैसे मेरा बैकग्राउंड सीए का था, ठीक है, तो Right. मेरे को वो पुराना मटेरियल उठाने में कुछ इशू नहीं आता है. ठीक है, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर और बढ़िया तरीका है, आप मार्केट से बुक्स ले लीजिए. रैंकर्स क्लासेस के हैं, डीएडमी के हैं, या फिर कुछ भी, क्योंकि वो लोग उसी लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे जो कॉमर्स में आते हैं, राइट? Right. तो आप उनके स्टडी मटेरियल से सॉल्व कर लीजिए. तो ये मेरे हिसाब से लेवल होना चाहिए. पहले आप पीवाईक्यूज ऑफ कोर्स करिए जो उनके स्टडी मटेरियल में भी कवर्ड होंगे ही. फिर आप स्टडी Okay. मटेरियल देख लीजिए एडिशनल प्रैक्टिस के लिए. फिर और टाइम बचे तो आप एडिशनल मटेरियल उठा सकते हैं, बट आई थिंक दिस शुड बी सफिशिएंट. So I do have, sir, also graduation books, as I have also done masters. So I think they हाँ, are उसके also. मटेरियल आप देख लीजिए, उसके मटेरियल देख लीजिए, फॉर चैप्टर वाइज चैप्टर देखिएगा, है ना? और इम्पोर्टेंस के हिसाब से जा सकते हैं आप. जैसे कुछ चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ Sir, चैप्टर also ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. फॉर yes, एग्जांपल sir. जैसे Sir, आप कॉस्ट अकाउंटिंग में देखेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला एरिया हो गया, true. प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया. इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं कंपेयर टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो समझो
2-3 साल में एक बार पूछ रहे हैं, राइट? Okay. तो आप उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस, जैसे आप एडिशनल काम कर रहे हैं ना, तो एडिशनल भी आप सब कुछ के लिए ना करके टारगेटेड एरियाज के लिए कर सकते हैं। Okay. और इसी चीज को अगर आप टाइम में करेंगे ना, जैसे अभी फर्स्ट टाइम तो आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, पर Right. जैसे आप इसको टाइम मैनर में करिए, जैसे आप 3-4 क्वेश्चन को क्लब कर लीजिए, उसका मार्क्स टोटल करके उसके लिए कितना आपको टाइम मिलेगा, और फिर उन चारों क्वेश्चन को आप विद इन दैट टाइम फ्रेम करिए। Okay. इसके 2 फायदे होंगे। That will एक तो be आपको ये better. रियलाइज होगा कि जो टाइम, एक तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे इससे, कि यार मेरे को True. कहाँ पे कट डाउन करना है मेरे सम में, और कितना मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, कितना मैं प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे सकता हूँ, कितना मैं कंटेंट पे देना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको ये भी समझ में आएगा जब आप पीवाईक्यूज को टाइमली मैनर में सॉल्व करोगे, कि यार ये क्वेश्चंस तो 14 मिनट या 11 मिनट में हो ही नहीं सकते। Right. क्वेश्चन सिंपल आएंगे, जैसे फाइनल अकाउंट्स का आप क्वेश्चन देखिएगा, आई थिंक 2015-16 में आया था क्वेश्चन, ईयर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट जैसे मैंने जब उस क्वेश्चन को उठाया, जब मैंने वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया, फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाए, उसको करने में मेरे को ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लग गए। Oh. तो मेरे को ये रियलाइज हो गया कि यार अब मेरे को टैक्टिकली चूज करना पड़ेगा, तो फाइनल अकाउंट्स में अवॉइड करूंगा वहां पे, क्योंकि मुझे पता है दिस इज अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी। सेम गोज फॉर अमालगमेशन। अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो ही आप वहां पे न्यूमेरिकल उठाइए उसका, राइट? नहीं तो मैं जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखा, अगर अमालगमेशन है तो मैं उसको पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले अपने बाकी रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करूंगा कि यार मैं एफएम से चुन सकता हूँ क्या, बाकी थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में से कुछ पिक कर सकता हूँ क्या, उस तरीके से मैं काम करूंगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी टाइम कम है पेपर 1 में, True. है ना? तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा इशू। Sir, also, sir, especially as we are more tend to likely to prefer two questions from internal choice in section B, so it is यस, advisable that we will do some sort of kind of more like in 20 years or 25 years for FM and like these हाँ हाँ, subjects. बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए ना, एफएम के लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ाएंगे अच्छा रहेगा। उसके क्वेश्चंस एक तो सिंपल भी होते हैं और कभी कभी छोटे भी होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं होती है उसमें अकाउंट्स की तरह या कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह, राइट? टैक्सेशन में अगर आपके पास होल्ड नहीं है तो आप कोई एडजस्टमेंट में फंस सकते हैं वहां पे, बट एफएम आपको थोड़ा सा एक कंफर्ट देती है। तो एफएम के लिए आप एडिशनल प्रैक्टिस करिए अपनी बुक से या दूसरे स्टैंडर्ड मटेरियल से, मार्केट में जो नोट्स है उनसे। तो और एफएम जैसे आप अगर करते हैं तो आपको एफआई की थ्योरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एफएम Right. के कॉम्बिनेशन में एफएम और एफआई की थ्योरी आएगी, तो दोनों ही चीज को मास्टर करना है। ऐसा नहीं है कि अपन ने न्यूमेरिकल्स में मार्क्स बढ़ा लिए बट अब अपने मार्क्स उसमें कम हो गए। So theory part I have done actually. I wrote all the PYQs ठीक है, for paper 2 and the FMI and all that part. So ऑलराइट। numerical is the thing which I am facing. हाँ, उसको प्रैक्टिस से करिए, हो जाएगा। इतना वो मत लीजिए कि यार कैसे होगा, हो जाएगा। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपका कंफर्ट जोन आता जाएगा, और आपकी जो गलतियां कर रहे हो उसको एक सेपरेट पेपर पे आप लिखते जाओ, क्योंकि अभी आप जैसे आप 50-100 क्वेश्चन कर लोगे एफएम के टोटल, बट आप तो एग्जाम के एक दिन पहले वो वापस से देख पाओगे 100 क्वेश्चन? नहीं It देख will be पाओगे। difficult, bro. तो आज आपने क्वेश्चन क्या, इससे मैंने क्या सीखा, उसको एक लाइन में लिख लीजिए। जो आपकी मेमोरी में रहेंगे उनको मत लिखिए, जो आप गलती कर रहे हैं उसके बारे में लिख लीजिए। तो आप लास्ट डे पे उससे वो 2 पेज पढ़ के भी चले जाएंगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। True. ठीक है, अच्छे, मैं पास करूं नेक्स्ट उनको? Yes, sure. Thank you so much, sir. या थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रूपक, आपको भी पूछना था, आपको अनम्यूट करूं? रूपक, नेक्स्ट एक बार उनसे पूछता हूँ, रूपक शायद। गरिमा, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं प्लीज। Yes, sir. Good morning, sir. गुड Hello. मॉर्निंग। Yes, sir. सर मुझे पूछना था कि पेपर 1 में सो बेसिकली 2025 will be my first attempt and I've been preparing since February. So for paper 1
is ICI material sufficient for practical questions? I've already cleared CA Inter. Okay. So Yes, sir. So आप जैसे आईसीआई मटेरियल से कर रहे हैं उसमें कुछ इशू नहीं है आई थिंक, बट आप yes, एक sir. बार पीवाईक्यू जरूर देख लीजिए कि आपको कितना डेप्थ में जाना है. Okay, sir. Okay, sir. हाँ, एक बार So आप सारे पीवाईक्यू देखिए ईयर वाइज चैप्टर हाँ वाइज, तो आपको हाँ एक गाइडेंस मिल जाएगा. ओके सर. एंड सर फॉर पेपर 2 मैं रैंकर्स का नोट्स फॉलो कर रही हूँ फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. सो उसके अलावा और कहीं से सब्सटैंशिएट करना है एक्सेप्ट कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स? पेपर 2 की यार थोड़ा सा मेरी जर्नी अजीब रही है. पहले मैंने रैंकर्स के नोट से पढ़ा था, फिर यस सर. कुछ चीजें जैसे मेरा इतना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था नहीं सीए में भी, तो वो यस चीजें सर. मेरे को समझने में थोड़ा सा इशू आ रहा था. फिर मैंने एक सर हैं गौतम सूद सर, वो हाँ पढ़ाते थे कॉमर्स का, तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया. फिर मेरे को थोड़ी कॉन्सेप्ट्स समझा, फिर मैंने टेस्ट सीरीज करी और राइटिंग करी. उससे मैं एकदम स्टेबलाइज हो गया पेपर 2 में. सो आप अभी जैसे कॉमर्स के या फिर कोई और रैंकर्स के नोट्स पढ़ रहे हैं, वो बढ़िया है. मैं एक बार अपने नोट्स भी एक बार डालने वाला हूँ यस सर. यस पेपर सर. 2 के लिए. तो यस पेपर सर. 2 में आप एक बार उनको स्किम कर लीजिएगा कि यार ये अच्छा मटेरियल, ये चीज अच्छी लग रही है, फिर अपने नोट्स में उनको डाल लीजिएगा. आई थिंक वो बेटर रहेगा. ओके ओके सर. उसके ओके बाद आप सर. आंसर राइटिंग करिए, और जहां भी आपको गैप फिल कर हो रहा है आप उसके लिए एडिशनल मटेरियल देखते जाइए. क्योंकि कॉमर्स या फिर कोई भी ऑप्शनल पेपर में क्या होता है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है. यस सर. क्योंकि एंडलेस है. जैसे नए नए क्वेश्चंस भी आते हैं थोड़े से, और आपको हर यस बार सर. ऐसा लगता है इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास कंटेंट ही नहीं है. यस तो सर. यस सर. तो ये गैप आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ 1-2 साल, मतलब जितने भी अपन अटेम्प्ट्स देते हैं, हर बार ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा और फिल कर लेते हैं, थोड़ा सा और फिल कर लेते हैं. तो ये तो एंडलेस रहेगा. तो आपको यस भी, आप ऑप्शनल या फिर कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप स्टेज बाय स्टेज करिए कि यार फर्स्ट स्टेज है मेरा बेसिक कंटेंट, सबका बेसिक कंटेंट हो गया. आप यस हर सर. हर सब्जेक्ट में मास्टरी का मत ट्राई करिए. पहले आप यस सब में सर. बेसिक करिए, फिर सबके पीवाईक्यूज आप देखिए, थोड़ी सी आंसर राइटिंग करिए, फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन पे जाइए. तो ये एक लेयर बाय लेयर बनाइए इसको, रादर देन कि यार मैं पहले एफएम का पूरा कर लेता हूँ, स्टैटिक बेसिक वैल्यू एडिशन सब कुछ. तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. राइट. यस तो आप सर. पहले सबका बेसिक कर लीजिए, एक बार सब कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, पीवाईक्यूज को एड्रेस कर पा रहे हैं क्या, यस सर. फिर उसके बाद आप नोट्स देख लीजिएगा. तो Okay, sir. Okay, sir. And sir, I had a doubt for GS also. हाँ जी. Sir, modern history के लिए is Spectrum the only source, or we can go other than Spectrum? Spectrum छोड़ के बिपिन चंद्रा, can we switch to that? मैंने एक्चुअली स्पेक्ट्रम ही पढ़ी थी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. Okay, okay, विपिन sir. चंद्रा का मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है कि उसमें क्या रेलेवेंट है और नहीं है. स्पेक्ट्रम का Okay, sir. फायदा ये है कि वो हिस्ट्री को ज्यादा समझने के लिए नहीं बनाई गई है, वो एग्जाम के लिए ही बनाई गई. Yes, sir. यूपीएससी में जिस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं या फिर पूछी गई हैं, वो उनको कैटर कर रही है. Yes, sir. जो बाकी बुक्स हैं वो एक तरीके से इस तरीके से लिखी गई हैं कि यार वो ऑथर के ओपिनियंस हैं उसमें और वो सब चीजें. तो Yes, sir. स्पेक्ट्रम Yes, का sir. मुझे ये फायदा लगता है. और So सेकंड, actually, I've started. Yes, sir. विपिन चंद्रा जैसे बुक है, उसकी कुछ Yes, जो sir. पास्ट के टॉपर हैं, जैसे एक मंदर पाटेकर सर है, शायद मंदर सर है, उनका भी एक नोट्स है कि उन्होंने शायद विपिन चंद्रा से ही बनाया है. तो उनके 70-80 पेज के नोट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के. Okay, sir. Yes, तो sir. अगर मुझे मिलते हैं तो वो मैं डाल दूंगा. तो आई थिंक उसको आप रेफर कर लो. Okay, sir. Sir, because I've been studying Spectrum, I've studied a few chapters, but what difficult हो रहा है to retain so much in Spectrum. हाँ, ये होता है, बट अभी आप फर्स्ट रीडिंग में रिटेन करने का स्ट्रेस क्यों ले रहे हो. जैसे अपन फर्स्ट Yes, रीडिंग में पढ़ रहे हैं ना, कोई भी आप बुक yes, sir. पढ़, फर्स्ट रीडिंग में हाँ अगर हाँ. आप रिटेन करने का बोलेंगे या फिर इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो बहुत स्ट्रेस आएगा. आप उसको Yes, प्लेन sir. रीडिंग कीजिए कि यार मेरे को इसको पढ़ना है, थोड़ा सा इम्बाइब करना है, चैप्टर बंद करके अगर मैं सोचूं मेरे को क्या क्या इसमें याद आ रही है मेजर चीजें. क्योंकि अभी तो आपकी टाइमलाइन ही नहीं बनी है ना. एक Yes, बार sir. टाइम Yes, sir. आप कुछ टाइमलाइन के यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं जिससे मॉडर्न हिस्ट्री आपका रिवाइज हो जाए. बट आप एक बार अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम का क्या डिसएडवांटेज है कि वो थोड़ी सी बिट्स एंड पार्ट्स में चलती है, Yes, एकदम sir. उसमें Yes, sir. लिंकेजेस नहीं आते हैं. राइट. Yes, sir.
तो एक बार आप प्लेन रीडिंग दीजिए, अभी उसको स्ट्रेस मत लीजिए कि आप क्या उसमें याद करना है क्या नहीं, क्योंकि अभी आप वो सब चीजें भी याद करने लग जाएंगे जो शायद रेलेवेंट ही ना हो। तो आप यस सर, पीवाई यस सर। देखिए और मेंस के भी पीवाईक्यूज देखिए, तो आपको पता चलेगा किस डेप्थ में जाना है, क्या करना है। ओके ओके सर, यस सर, थैंक यू सर, दैट वाज इट। या ऑल द बेस्ट। यस जानवी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा अभी ओटी कंप्लीट हो गया है विथ नोट्स, और कितने टाइम में टोटल सिलेबस कॉमर्स का खत्म होना चाहिए? आपका क्या बैकग्राउंड है आपका कॉमर्स में? मैंने सिर्फ बीकॉम किया है और कुछ नहीं। तो अच्छा है, आपका एक फेमिलियरिटी तो है ही पूरे सब्जेक्ट से। हाँ, जैसे तो आप, मतलब कितने कितने टाइम में खत्म होना चाहिए? ये बहुत ही ऐसे इंडिविजुअल सेंट्रिक, मतलब मैं इसको क्वेश्चन बोलूंगा कि कितने टाइम में आप कर सकते हैं। अब जैसे अगर अपन एवरेज लें तो हम्म एफ फर्स्ट पार्ट ए में सिलेबस को देखें, हम्म अगर पार्ट ए में हम्म हम्म वैसे एफ हम्म ए, सी ए, टैक्स, ऑडिट, एफ हम्म एम, एफ आई। हम्म, एफए पार्ट में में। एफए में बेसिक क्वेश्चंस ही हैं जो अपन 12th और ग्रेजुएशन में करते ही हैं, जो अकाउंटिंग, शेयर अकाउंटिंग वगैरह है। फिर हाँ अमेलगमेशन और हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। मेन चीजें यही है, राइट। हाँ हाँ इसको हाँ। आप करेंगे तो यार शेयर्स वगैरह करने में आप, जैसे आप कितना टाइम एलोकेट कर रहे हैं, अगर आप पूरा पूरा डे एलोकेट कर रहे हैं तो हो सकता है आप 1-1.5 दिन में ही इसको खत्म कर लें। हाफ मैं डे दे अभी रहे हैं फुल टाइम ही दे रही हूँ। कॉमर्स को। जी। हाँ हाँ, तो जैसे आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट ब्रेक करिए कि यार इसमें मेरे को कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करना है। एफए में मेरे को शेयर अकाउंटिंग करना है, अमेलगमेशन करना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करना है। तो मेरे को शेयर अकाउंटिंग के लिए हाँ। सपोज लगेंगे, अमेलगमेशन के लिए 3 दिन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हम्म लिए 3। तो टोटल हो गए मेरे पास 8 दिन। हम्म। आप इस तरीके से प्लानिंग करिए। हाँ फिर आप कॉस्ट ओ, अकाउंटिंग में आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप हम्म चैप्टर वाइज देखिए यार, कुछ चैप्टर बहुत ईजी हैं, कुछ चैप्टर में आपको ज्यादा डिटेल में जाना है, तो वहाँ पे भी सपोज 7 दिन लगे आपको। टैक्स हम्म अगर आप कितना डिटेल में प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, आपने 5-7 दिन उसको दिए। इस तरीके से आपको, हम्म मेरे को लग रहा है मेन मेन जो टॉपिक्स हैं 40-45 हम्म। 40 डेज में एक पेपर आपका हो जाना चाहिए। ओके। हाँ हाँ। और मुझे ओटी खत्म करने में 1 वीक लगा था हाँ सही है, बहुत ही विथ बढ़िया। नोट्स। हाँ बहुत सही है। और इसको आप अब जैसे इसको ड्रॉप मत करिए, इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए आधा घंटे कि इसमें क्या हाँ चीजें हैं। हाँ। जैसे आपने हम्म अभी ओटी के नोट्स बना लिए, तो अब ओटी के पीवाईक्यूज उठाइए हम्म कि इसका मैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या बना सकती हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्या लिख सकते हैं इसमें। बहुत ज्यादा अभी हम्म परफेक्ट आंसर या फिर उसको डिलीवर करने का कोशिश मत करिए, कि बस बेसिक देखिए अच्छा एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन दी हम्म ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सोचिए अच्छा मैं इसमें क्या हम्म। थ्योरी डाल सकती हूँ, क्या एग्जाम्पल्स मुझे याद आ रहे हैं, क्या। अभी तो मैं सिर्फ रैंकर्स क्लासेस के जो नोट्स है, मटेरियल है, उससे कर रही हूँ, और उसी से ही मैंने नोट्स बनाए। मतलब कोई वैल्यू एडिशन अभी तक नहीं किया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो आप उसी मटेरियल को आप लेके बैठ जाइए पीवाईक्यूज में कि यार ये मेरा हाँ मटेरियल है, अब इसमें से मैं क्या क्या इसमें डाल सकता हूँ। या आप किसी फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं कि 2-3 लोग आप हाँ। ग्रुप बना के कि यार आज अपन इस चैप्टर के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, अपने अपने नोट्स या तो हम्म आप पढ़ के आ जाइए या फिर साथ में लेके बैठ हम्म जाइए कि यार क्या इस हम्म पॉइंट को मैं डाल सकती हूँ, क्या ये सेक्शन। तो उस तरीके से आप हम्म लिंकेजेस बनने लग जाएंगे पेपर में। अच्छा हाँ यार ये पार्ट भी इससे लिंक हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये भी लिंक हो सकता है। और थोड़ा सा आप हम्म जो भी आसपास ऑब्जर्व करेंगे तो उससे भी आपको चीजें आएंगी। हम्म फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर अपन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो एआई हो गया, हम्म चैट जीपीटी आ हम्म गया। चैट जीपीटी से तो हम्म सब इम्पैक्ट हो रहा है सारी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप हम्म देखें गूगल है, हम्म गूगल मतलब सबसे बड़ी, ऑलमोस्ट सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड की, उसको चैट जीपीटी ने हिला दिया, एक सर्च इंजन को, राइट। तो आप हम्म देखो तो कोई भी इम्यून नहीं है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, सबको इम्पैक्ट करती है हम्म। डिफरेंट पैरामीटर। और जो हाँ। एक प्लेन क्या बोलना चाहिए,
रेगुलर मेथोडोलॉजिकल कोई जॉब कर रहे हैं जो जिसको एआई रिप्लेस कर सकता है, उसके लिए बहुत इमीडिएट पर्सनल थ्रेट है और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी थ्रेट। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप आपको एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। और एग्जाम्पल से मतलब मार्क में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, मतलब एग्जाम्पल इज कंपलसरी या फिर? ये जनरली आप देखिए, आप इवेल्युएट कर रहे होंगे अगर किसी चीज को, आप हाँ किसको करेंगे कि किसी ने बस ये लिखा है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने लिखा है पॉइंट, और आपने लिखा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल गूगल अफेक्टेड बाय अपकमिंग ये ट्रांसफॉर्मर जो आते हैं जीपीटीज, जैसे कि चैट जीपीटी, आपको क्या हाँ बेटर लगेगा? हम्म तो इस तरीके से आप जाएंगे, बट इस तरीके से स्ट्रेस मत लीजिए कि आपको हर पॉइंट का एग्जांपल देना है। आप अपने जैसे आप हाँ पॉइंट अगर लिख रहे हैं तो एटलीस्ट पहले 3-4 पॉइंट के लिए एग्जांपल लिखिए, तो एग्जामिनर को चेक कर रहा है, उसका एक फ्लो बनेगा, अच्छा हाँ इसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये उसको रिलेट कर पा रहा है रियल लाइफ से, या फिर कुछ थिंकर से कर रहा है, कुछ कॉर्पोरेट एग्जांपल दे रहा है। उस तरीके से आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बेटर क्वालिटी आएगी। और सर रैंकर्स क्लासेस के वो मटेरियल है वो सफिशिएंट है या फिर उससे आगे भी कुछ करना पड़ेगा? फर्स्ट लेवल आप उसको करिए, फिर हाँ पीवाईक्यू करेंगे, आपको जो भी गैप लगे उसको भर सकते हैं अपन, और मैं मेरे नोट्स भी डाल रहा हूँ, आप उसको भी एक बार स्किम कर लीजिएगा। ओके ओके आई थिंक इट शुड बी सफिशिएंट। ओके सर, थैंक यू। हाँ, एक सोर्स लीजिए और उसको अच्छे से करिए, और जहाँ और पेपर बाकी 1 में पेपर 1 में भी वैसे ही। मतलब मैंने तो सिर्फ बीकॉम ही किया है, मतलब ऐसा कुछ और बैकग्राउंड है नहीं, तो फिर पेपर 1 के लिए मैं मतलब किसी एक कोचिंग के नोट्स के साथ जा सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, आपको पहले वही करना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ या फिर आपके जो ग्रेजुएशन में आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो आपके यूपीएससी में भी काम आ रहे हैं सेम चैप्टर्स, तो आपको हाँ फेमिलियरिटी भी आ जाएगी। जैसे आपने प्रोसेस हम्म को पढ़ रखा है ऑलरेडी, मेहनत कर रखी है, तो एक बार वहां से घुमा के यहाँ पे आ जाए तो आपका टाइम बच जाएगा, हम्म है ना। उस तरीके से आप करेंगे तो एक लेवल पे आ जाएंगे। फिर पीवाईक्यूज देखिए, यार पीवाईक्यूज एड्रेस हो रहे हैं क्या मेरे से, कहाँ पे इशू आ रहा है। फिर सपोज हाँ जैसे आपको एक एरिया है, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है एफएम में, कॉस्टिंग में, तो आप यूट्यूब पे जाके उसका कोई भी लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर वो कोई ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया होगा। यूट्यूब पे उस चैप्टर को सर्च करके उसका समझ लीजिए कंटेंट, हाँ है ना। तो उससे भी आप गैप फिल कर सकते हैं, बट पहले जरूरी है कि आप एक बेसिक प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब वो सब और इनकेस अभी फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाए 2 महीने के अंदर, तो फिर उसके बाद मैं रिवीजन शुरू कर दूं या फिर जीएस स्टार्ट कर दूं? मतलब एक बार मेरा जीएस हो चुका है। हाँ, जीएस आप स्टार्ट करते रहिएगा साइड बाय साइड, इसकी या तो आप थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग करिए, पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्म करिए, या फिर आप और रिवाइज तो करना है बिल्कुल, वरना क्या होगा, आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे भूलते जाएंगे। वही प्रॉब्लम आप हो रही है। ये यूपीएससी में होता ही है कि अपन, तो आपको दिन का आधा घंटा 1 घंटा आप दीजिए रिविजन का, अभी आप टाइम दे रहे हैं उसके हिसाब से प्रपोर्शन करके, क्योंकि जो हाँ एडवांटेज, और अभी ये भी आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि मतलब अभी मैं पढ़ रही हूँ, इसके आगे जाके मैं मतलब नेचुरल है कि मैं भूल जाऊं, ठीक है। तो आप मतलब थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज मतलब करते जैसे रहिए। मतलब टेक्निकली प्रूव्ड मेथड है जो एक दिन के बाद करना है और 7 दिन के बाद करना है और फिर 15 दिन के बाद और फिर 30 दिन के बाद, मतलब ऐसा फॉलो करके तो फिर रिवीजन में ही टाइम चला जाता है, ऐसा लग रहा है। नहीं तो अब जैसे, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, अब जैसे रिवाइज अपन कर रहे हैं, हो सकता है अपन सब रिवाइज नहीं कर सकते, जैसे अपन आधा मतलब घंटा ऊपर देख, ऊपर से देख लिया है। अपन ने ऊपर ऊपर से देख लिया, या फिर रिकॉल किया, अच्छा हाँ अरे ये मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इससे मुझे क्या क्या याद आ रहा है, एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए, मैक्रो टू माइक्रो जाइए, अच्छा मेरे को ये 3-4 अपन ने सेक्शंस पढ़े थे इस चैप्टर में, ये याद आ रहा है, अब इस सेक्शन के अंदर मुझे क्या क्या याद आ रहा है, ए बी सी डी, आप ऐसे करिए। फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। तो 10-15 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, 15-20 मिनट रिवाइज कर लीजिए, ये एक तरीका है। ओके। सेकंड एक और तरीका होता है कि अपन जब पढ़ते हैं ना, तभी अपने को रियलाइज होता है कि यार ये मेरा वीक एरिया है, तो आप उन वीक एरियाज को एक अलग पेपर पे लिखते जाइए। ये मैं और प्रीलिम्स में मुझे जरूर, लगता है कि
मुझे लग रहा है कि मतलब असली प्रॉब्लम तो तभी आएगी जब आंसर राइटिंग करके, तभी कुछ मतलब पेन ही नहीं चलेगी तो फिर तब लगेगा कि अभी कुछ नहीं आ रहा है। आप पीवाईक्यूज करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेन जो पेपर 2 की मैंने मास्टरी कर पाया था वो तभी कर पाया था जब मैंने 2-3 जो लोग क्या बोलते हैं मेंस दे रहे थे उनके साथ एक ग्रुप बनाया जो सीरियस थे। पहले 15-20 लोगों के साथ बनाया, उसमें कोई आंसर राइटिंग कर नहीं रहा, उसमें से 2-3-4 लोग जो अच्छे थे, लाइक माइंडेड थे, उनको लेके एक छोटा ग्रुप था। फिर उन 4-5 में हमने क्या डिसाइड किया कि यार सपोज ओटी अपने को रिवाइज करना है 8-9 दिन में, ये आंसर राइटिंग बोल रहा हूँ मैं, तो अब सपोज 8-9 दिन में, हाँ वो टाइम फ्रेम पे भी डिपेंड करता है कितना है। तो हमने सपोज 60 डे का प्लान बनाया यार कि 30 डेज इसको देंगे, 30 डेज इसको देंगे पेपर 2 को, 40 डेज उसको दिए सपोज। तो यार 7-8 डेज दिए, अब हर दिन अपने को एक दो चैप्टर के पीवाईक्यूज लिखने। तो अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देते थे कि यार आज आप 2 चैप्टर के क्वेश्चन डालना, कल मतलब ओटी का सपोज मैं डालूंगा, ओबी का आप डाल लेना, तो पीवाईक्यू से ऑटोमेटिकली 3-4 क्वेश्चन चुन के वो डालते थे, हम और सब चेक लोग कौन करता था? एक दूसरे का ही पीयर इवैल्यूएट करते थे कि यार तो आपने मतलब इतना इनफ है? मैंने भी सोचा था और करा भी था, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि इतना इनफ नहीं है कि हम। एक बार ये तो करिए, आइस ब्रेक तो हाँ करिए। आप अगर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या फिर सर का कोई गाइडेंस ले सकते हैं तो वो तो और अच्छा है। नहीं, वो तो नहीं ले सकते। एंड आई एम हाँ फ्रॉम तो गुजरात, तो फिर मतलब यहाँ से तो कोई मतलब प्रिपरेशन भी नहीं करा है। और ऑनलाइन मैंने एक देखा था ग्रुप, तो उनमें भी कोई मतलब प्रोडक्टिव लोग थे नहीं। धीरे धीरे आप करिए, अभी आपकी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो एकदम से लोग नहीं मिलते हैं, स्पेशली कॉमर्स के। तो हाँ हम इस ग्रुप पे भी ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई छोटा ग्रुप बन जाए तो उस तरीके से आप ट्राई करिए, है ना। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस श्रीवास्तव, श्रीवत्सा। Hello, sir. Good morning. हेलो, गुड मॉर्निंग। Sir, I am preparing full time from 2023 Feb, and this was my first prelims. I was unable to clear the cutoff. ओके Sir, last year in 2023 December, I gave my full time to optional, and I completed paper 1 and OT and OB. But ओके since then, I have been fairly out of touch from commerce. And two doubts that I have is कि मतलब I was in rankers foundation classes. Sir emphasized a lot on leaving things, मतलब कि we should focus on doing things which are more scoring and completely ignoring things that are not that scoring. Even sir, you said कि FA is something that consumes a lot of time, and it's not feasible to do it in that stipulated time. So that was my first question कि sir क्या क्या छोड़ सकते हैं। और सर सेकंड क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग की वैल्यू एडिशन कैसे, मतलब जैसे हम लोग सर जीएस में वी ड्रॉ अ लॉट ऑफ बार डायग्राम्स और पाई चार्ट्स, या मतलब इंट्यूटिव दिखाते हैं, अपीलिंग दिखाते हैं आंसर को, तो व्हाट कैन बी डन इन ऑप्शनल टू replicate the same answer writing here also? जैसे किन चीजों को आप छोड़ सकते हैं, वो थोड़ा सा आप एक तो पीवाईक्यू के एनालिसिस से भी समझेंगे। Yes, sir. जैसे अमेलगमेशन है, अमेलगमेशन में मैंने इतनी मास्टरी करी नहीं क्योंकि मेरे को पता था वो मेरे से नहीं होगा वहाँ पे टाइम फ्रेम, तो मैंने वो रिस्क लिया। बट अब मैंने वो, क्योंकि यूजुअली वो क्वेश्चन, अब जैसे अमेलगमेशन मैंने छोड़ा है, बट मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आता है इस एरिया को मैंने कर रखा था, क्योंकि इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। तो सपोज Yes, मैंने sir. अमेलगमेशन ड्रॉप आउट किया, तो मेरा पेपर ए में पेपर 1 में सेक्शन ए जो आता है उसमें यूजुअली सेकंड क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, क्योंकि 3-4 साल से अमेलगमेशन पूछ ही रहे। तो अब मेरे पास बहुत कम लीवे है कि मैं कुछ और छोड़ूं एफए में या फिर टैक्स में, सीए में और वो में। अब मैं ये भी नहीं कर सकता कि यार मैं टैक्स का न्यूमेरिकल भी नहीं करूंगा या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल नहीं करूंगा, क्योंकि अब क्योंकि लीवे खत्म हो गया है मेरा। तो आप सेक्शन बाय सेक्शन चलिए। तो जैसे आप फर्स्ट सेक्शन में अगर आप अकाउंट से कुछ पोर्शन छोड़ रहे हैं तो आपको बाकी चीजों को अच्छे से करना पड़ेगा। जी सर।
राइट। और जैसे अमेलगमेशन में मैंने ड्रॉप आउट किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने उसको एक बेसिक लेवल पे पढ़ा कि यार अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो मैं फंस जाऊं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट मैं उसमें कुछ कर पाऊं। यस सर। ये हुआ न्यूमेरिकल का अप्रोच। अब एफएम में आप जाएंगे। हाँ एफएम में अगर आप ऑलरेडी 2 क्वेश्चन एफएम से अटेम्प्ट करने का ट्राई कर रहे हो, तो एफएम का तो आपको वैसे भी मास्टर करना पड़ेगा। आप यस उसमें कुछ एरियाज थोड़े से आप रिस्क ले सकते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप बेसिक लेवल पे करके छोड़ सकते हैं। पीवाईक्यूज कर लीजिए बस, जो ज्यादा सर। पूछे जा रहे एरियाज हैं उन पे ज्यादा फोकस करिए। इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। यस सर। सर मतलब सर मैंने लास्ट ईयर पूरा एफएम सीए इंटर के मटेरियल से कर लिया था, और मतलब पीवाईक्यू को साथ में मतलब बहुत डेप्थ में नहीं किया, जितना पूछ रहे थे उतना ही करा, और पूरे ठीक है। पीवाईक्यूज कर दिए थे एफएम के। और सर मतलब मेरे कंफ्यूजन, सर मैंने टैक्सेशन नहीं करा अच्छे से, आई हैव ओनली डन बीकॉम ऑनर्स, तो टैक्सेशन इज नॉट माय स्ट्रांग फोरा। तो ठीक मेरे है। सर आई हैव ओनली प्रैक्टिस इट्स थ्योरी, आई हैव नॉट अटेम्प्टेड एनी ऑफ इट्स न्यूमेरिकल। और सर एफए मेरे को थोड़ा वीक लगता है, बट वही सर इवन आई कंक्लूडेड कि मतलब कुछ तो मेरे को इन दोनों में से एक स्ट्रांग करना पड़ेगा, बिकॉज इफ आई एम लीविंग एफए देन आई कैन नॉट लीव द टैक्सेशन न्यूमेरिकल। हाँ, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि फिर आप एकदम फोर्स कर लेंगे खुद को कि आपको सेक्शन बी में से करना ही करना है, बट हो सकता है एफएम में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन फंस जाएं जो आप नहीं कर पा रहे, यस सर। जो पार्ट भी है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। और अब जैसे सेम गोज फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन में आप पीवाईक्यूज करिए। रैंकर्स के जो सर हैं उन्होंने पीवाईक्यूज के सोल्यूशन भी बनाए हैं, उनकी जो बुक है उसमें भी टैक्स के स्कैनर सारे पीवाईक्यू सॉल्व है, हाँ तो आप सर। उसको कीजिए। फिर जैसे सीए में एक भगत बुराना सर हैं, तो उनके रिवीजन लेक्चर्स डले हुए हैं यूट्यूब पे, तो वो जो आईपीसीसी लेवल के रिवीजन लेक्चर्स हैं उनको आप देख लीजिए, सैलरी का, बाकी डिडक्शन के हेड्स का, उससे आपको फेमिलियरिटी आ जाएगी। और थर्ड एस्पेक्ट है कि आप विद इन सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रेटेजिक हो जाए। जैसे अगर आपसे टैक्सेशन से पूरा न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, ज्यादातर तो पूरा न्यूमेरिकल ही आता है, बट आप जैसे एटलीस्ट कैपिटल गेन के न्यूमेरिकल कर सकते हैं अगर वो पूछे जा रहे हैं तो, यस। राइट। तो उसके अंदर भी कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज आप करके कर सकते हैं कि यार ये मैं करूंगा, इसके अलावा नहीं करूंगा, उस हिसाब से दूसरा सब्जेक्ट काउंट करना पड़ेगा। ठीक है सर। सेकंड चीज और आप क्या पूछते थे? सर वो पेपर 2 में कि हाउ टू, या पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में से जो वो तो पूरा थ्योरी जो पार्ट है उसको कैसे आंसर्स को अपीलिंग बनाए, या वैल्यू एडिशन क्या करे। जैसे कॉर्पोरेट एग्जांपल्स लिखते हैं, बट बहुत ही सर वो ओवर मतलब सर इश्यूज सेम रहते हैं, बट कंपनीज का नाम ही चेंज होता है, मोर और लेस सबके एग्जांपल्स बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे रैंकर्स वाले सर हैं, डीएडमी में भी राहुल सर हैं, इन लोगों ने भी काफी अच्छे कंपाइलेशन बनाए हैं इस बार एग्जाम्पल्स के, यस सर। तो उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी बनाइए अपने लिए। यार 3-4 लोग ग्रुप में आ गए, अपने डिसाइड किया इस चैप्टर में आपके पास क्या क्या है, कंटेंट शेयरिंग किया, और उस तरीके से एक लिस्ट बना ली कि यार पर्सनालिटी में मैं इस टाइप के एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, या फिर एनवायरमेंट में ये लिख सकता हूँ, गोल्स में ये सेटिंग कर सकता हूँ। गोल्स है, अब आप ब्रेनस्टॉर्म करिए इंडिया के क्या गोल्स हैं आज, एज एन सर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, कार्बन इकोनॉमिक ऑक्सीजन। इकोनॉमिक गोल्स हैं, सिक्योरिटी के गोल्स हैं, एनवायरमेंटल गोल्स हैं, पंचामृत, तो पंचामृत भी गोल्स हैं। वर्ल्ड के क्या गोल्स हैं, वर्ल्ड के एसडीजी गोल्स हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस है कुछ, उनके क्या गोल्स हैं, क्या विजन है उनका। एक इंडिविजुअल के क्या गोल है, इंडिविजुअल को क्या चाहिए, उसको 3S चाहिए, उसको सैलरी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, 4S हो गया। इस तरीके से इंडिविजुअल के गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं। आप ऐसे समझेंगे थोड़ा सा तो आपके ऑलरेडी अंदर है ही, बट आप उसको धीरे धीरे ब्रेनस्टॉर्म करते रहेंगे और डिस्कस करेंगे तो अपने आप बाहर आएगा। और बात रही बाकी चीज़ों की, तो डायग्राम्स आप यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। तो आप जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं ना, जैसे आप चैप्टर उठाया यार, आज HRM को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ठीक है, तो HRM का चैप्टर बना है, सपोज मीनिंग, स्कोप और वो सब आ गया, तो बेसिक हो गया। फिर HRM के कुछ मॉडल्स होते हैं, थॉमसन मॉडल, हार्वर्ड मॉडल, ये सब, तो उनके कुछ डायग्राम्स हैं। फिर अब आप फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं, सपोज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग,
ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैं अपने नोट्स डालूंगा, उसमें मैंने छोटे छोटे डायग्राम्स बना रखे हैं कि यार राइट पर्सन एट राइट जॉब राइट प्लेस, और वो ये है। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस का डायग्राम बना सकता हूँ मैं कि इट विल स्टार्ट विद सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी मैंने, फिर ह्यूमन रिसोर्स का अपन ने फोरकास्टिंग करी, सप्लाई डिमांड, उसके बाद मैंने प्लान पूरा अपना प्रोग्राम बनाया और फिर उसको फीडबैक लिया। इस तरीके से एक प्रोसेस का डायग्राम हो गया। मैं अभी यही ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ कि क्या हर चैप्टर में वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। सिलेक्शन आया, सिलेक्शन में क्या कर सकता हूँ, सिलेक्शन में एक ट्राइंगल बना सकता हूँ मैं, जो रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड होता है कि ट्राइंगल बनाया। सबसे पहले मैंने सारे उनका एप्लीकेशंस देखी, तो एप्लीकेशन इस तरीके से वो छोटा छोटा होते जा रहा है। तो एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में कि सिलेक्शन इज बेसिकली एन एलिमिनेशन प्रोसेस। तो अगर मैं वहां पे वो डायग्राम बनाता हूँ तो आपको जरूर एक वो आप कन्वे कर रहे हैं ना कि कैसे छोटा 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 होते जा रहा है, सब एलिमिनेट होते जा रहे हैं, राइट। तो आपका जो डायग्राम्स है वो कन्वे करना चाहिए, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहिए। फिर मुझे सर्कल बना के एरोज बनाना, वो कभी आपको जरूरत पड़े आप जरूर यूज करिए कॉमर्स में, बट ट्राई करिए वैल्यू ऐड करिए। और जीएस और ऑप्शनल में ये डिफरेंस आता है कि ऑप्शनल में आप थोड़ा सा फ्लो बनाने का कोशिश करिए क्वेश्चन में। जैसे आप आंसर कर रहे हैं, तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, तो इंट्रोडक्शन में एक बेसिक उसके क्वेश्चन को समझाना चाहिए। मैं इसका एक एग्जांपल लेने का ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने अभी पर ट्राई किया था कि मैं पीवाईक्यूज के सिर्फ वही लिखूं, कंक्लूजन्स। यस सर। ठीक है, जैसे 2023 का ऑप्शन का पेपर 2 था। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया 2022 में कि एमबीओ इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग। यस सर। ठीक है, इसको आप 2022 सर ये शॉर्ट नोट्स था। हाँ शॉर्ट नोट है, एमबीओ इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? फर्स्ट अपन इंट्रोडक्शन देंगे, मिक्स्ड ब्लेसिंग बोला है मतलब इसका प्रोज एंड कॉन्स है। यस सर। ठीक है, और थोड़ा सा आप एक लाइन वो दे सकते हैं कि या फिर कंक्लूजन में ही डाल सकते हैं कि कैसे इसको बेटर बना सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब आप यूजुअली क्या करेंगे इसमें, जो जनरली बच्चे करेंगे कि इंट्रोडक्शन में एमबीए को डिफाइन कर देंगे। दैट इज राइट, वो तरीका सही है, बट अगर अपने को इंट्रोडक्शन से ही समझाना होता कि ये किस तरीके से एमबीओ इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, तो अपन क्या लिख सकते थे कि एमबीओ इज अ, मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ बट बहुत स्मार्टली दे रहा हूँ, तो एमबीओ इज अ कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग प्रोसेस गिवन बाय पीटर ड्रकर। हाँ सर। मैंने एक लाइन में ये लिख दिया, तो उसका मीनिंग भी बता दिया और किसने दिया है वो बता दिया। इट इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग as it has both pros and cons depending on how it is applied। तो मैंने 2 लाइन में उनको ये समझा दिया कि एमबीओ क्या होता है, इट इज अ कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग प्रोसेस बाय पीटर ड्रकर। और फिर मैं सेकंड लाइन में लिख दिया इट इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग बिकॉज इट हैज बोथ प्रोज एंड कॉन्स डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज अप्लाइड। तो एग्जामिनर को मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि इसको एमबीओ का मतलब पता है, किसने दिया है वो पता है, और मिक्स्ड ब्लेसिंग क्यों है, क्योंकि इसके प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब आगे ये प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला है। हाँ सर। तो ये इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगा? हाँ सर। ये 2 लाइन में एडिशनली कन्वे कर रहे हैं, तो आपने ये लिख दिया। फिर क्या बोलते हैं, आप फिर कंक्लूजन दे दिया कि एमबीओ still MBO is being widely used by companies like General Electric, Philips. To make it better, we can organize workshops, clarity can be given, and to ensure goal convergence, goal concurrence। इस तरीके से आप कंक्लूजन दे दिया प्रोज एंड कॉन्स लिखने के बाद, तो आपका एक आंसर होलिस्टिक हो गया, राइट। यस सर। एमबीओ अपना टॉपिक है ही, तो एमबीओ का आप एक दो कंपनी याद रख लो। वैसे तो हर एक कंपनी यूज कर रही होगी एमबीओ इन सम फॉर्म और दी अदर, आप जनरली लिख सकते हो उसको। यस सर। इस तरीके से आप बना सकते हैं, राइट। तो इसका आपने दिया। अब एक क्वेश्चन आया था, अब
जैसे एक क्वेश्चन आया था, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन systems approach in the context of evolution of organizational theory. Write a brief note on the systems approach in the context of the evolution of the organizational theory. Yes. इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में अगर सिर्फ अपन सिस्टम्स अप्रोच का इंट्रोडक्शन दें, दैट इज ऑल्सो ओके, बट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, तो आप हल्का सा एक लाइन में आप ये बता सकते हैं कि इन द पास्ट सेंचुरी OT has evolved from classical thinking to modern organizational theory. आपने एक लाइन में एवोल्यूशन बता दिया, Yes. है ना? फिर आपने लिख दिया सिस्टम्स अप्रोच में ये था, क्लासिकल ने इस पे एम्फसाइज किया एक वर्ड में कि ऑर्डर पे, न्यू क्लासिकल ने ह्यूमन अप्रोच पे करा, बट दोनों ने एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दिया जो सिस्टम्स ने लिया, राइट? तो इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो और बेटर होगा। तो आप थोड़ा सा फ्लो बनाएंगे, कंक्लूजन अच्छा रखेंगे, कंक्लूजन को सीरियसली लेना है, स्पेशली ऑप्शनल में। सर कई बार इंट्रो और कंक्लूजन बहुत डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं मेन थीम से। हाँ, तो अब जैसे एक अभी बहुत ज्यादा आप इंट्रो कंक्लूजन पे फोकस नहीं करके पहले अपना बेसिक कर लीजिए, फिर आप एक दिन है ना पेपर लेके बैठिए और इस सबकी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ही लिख के देख लीजिए। यस सर। जैसे आपने पेपर 2023 का पेपर उठाया, यार इसका मैं क्या इंट्रोडक्शन लिखता है, इसका क्या कंक्लूजन लिखता है, 2 लाइन में, 3 लाइन में, तो आपका दिमाग ज्यादा उस पर फोकस होगा ना, और वो बेटर निकलेगा नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चंस को लेके करिए ये एक्सरसाइज। कंक्लूजन में आप अपने चैप्टर को भी कुछ याद कर सकते हैं, कुछ और मटेरियल है जो आप मे बी क्वेश्चन में यूज नहीं कर पाए बट आप कंक्लूजन में यूज करना चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सपोज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो आपने लिख दिए फैक्टर्स बॉडी में, बट आपने मेथड्स भी आपको याद है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, या फिर कोई कंपनी कोई मेथड यूज कर रही है तो आप उसको कंक्लूजन में ले आइए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे मार्कऑफ चेन एनालिसिस मेथड है, यस बुराक स्मिथ मॉडल है, ये भी PYQ में आ चुका है, तो इसको आप मेंशन कर दीजिए कि यार इस टाइप के मॉडल्स भी आजकल यूज हो रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं फॉर फॉरकास्टिंग में, ह्यूमन रिसोर्स AI का यूज कर रहे हैं। इस तरीके से आपने इसको फ्यूचरिस्टिक टोन दे दिया। सर बीइंग एक्सेसिवली टेक्निकल इज रिवॉर्डिंग इन ऑप्शनल, और मतलब वी कैन इन्वेंट समथिंग, मतलब हम लोग अपने खुद की लैंग्वेज में भी लिख के वी कैन राइट इट देयर एंड गेट रिवॉर्डिंग मार्क्स। आपको जनरल टाइप आंसर तो लिखना पड़ेगा, आप मतलब सिर्फ टेक्निकल थिंकर भी नहीं बढ़ सकते, मतलब दोनों एक्सटेंड नहीं कर सकते। आपको मिडिल पाथ लेके उसको सब्सटेंशिएशन है, ये सब चीजें, ये मेन चीज नहीं बन सकती। ओके सर, तरीके से आपको चलना पड़ेगा, राइट? यस राइट, yes sir, I have cleared all my doubts sir, thank you so much. Okay, all the best. Thank you sir. HK? Yes, sir. Sir, about the thing you mentioned, that the peer group, sir, I have done that, the peer group evaluation and thing. Sir, my doubt is regarding that we have solved like paper 2 and to some extent paper 1 PYQs. So, sir, for that the consolidation part, you have done like made notes out of that, the thinker, introduction, conclusion, or you're doing just a revision and space manner of PYQs? Because there is a lot of at the end. कंटेंट कंसोलिडेट तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना चीजें नहीं। तो जैसे लास्ट मेंस में भी मैंने किया था ये चीज, आपको बताऊंगा, मैं एक शीट शेयर करूंगा। तो जैसे आप HRM पढ़ रहे हैं, अभी आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर लें, उसके बाद आप HRM आपने उठाया, या तो आप पेपर पेन ले लीजिए या फिर एक शीट खोल लीजिए, गूगल शीट खोल लिया, उसमें आपने लिखा HRM में आपने फर्स्ट चैप्टर लिखा सपोज जॉब एनालिसिस, ठीक है? जॉब एनालिसिस से जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आता है। अब आप की टर्म्स उसमें नोट करते जाइए कि यार ये टर्म मैं भूल रहा हूँ, ये टर्म मैं भूल रहा हूँ, उसको तो आपके 2-3 पेज में HRM के नोट्स बन जाएंगे। बट ये एक्सरसाइज अभी करने का कोई सेंस नहीं है, अभी आपको सब चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। आप 1-2 रिवीजन कर लेंगे, मेंस में भी जैसे आप मेंस दे रहे हैं, प्रीलिम्स से निकल के आए, तब आप एक एग्जॉस्टिव रिवीजन करेंगे पूरा HRM का,
फिर एक और रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद अब आप जब HRM को लेके बैठेंगे, या तो उन 5 दिनों में जो आप GS के बाद मिलते हैं, या फिर लास्ट रिवीजन में जो आपका ऑप्शनल का होगा, उसमें आपने बैठ के यार की टर्म्स लिख ली, यार ये टर्म्स मैं भूल रहा हूँ और इसको अगर मैं डालूंगा तो फायदा होगा। Okay. तो उस So तरीके से kind of करेंगे। active recall I have to do related to that. एक्टिव रिकॉल करके भी, और कुछ चीजें आपको कंसोलिडेट करना पड़ेंगी। ये GS में भी है। अब जैसे आप कोई टॉपिक उठाए, सपोज सेक्युलरिज्म अपन टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, सोसाइटी का टॉपिक है सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म में मेरे पास क्या क्या टर्म्स मेरे को याद आ रहे हैं, अगर आज मैं रिकॉल करने का ट्राई करूं, तो जो जैसे सेक्युलरिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन आ गई कि यार सेक्युलरिज्म क्या होता है, इट इज अ डॉक्ट्राइन जो इंटर और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को अपोज करती है। ये NCERT की डेफिनेशन है कि आप अक्रॉस रिलीजन भी आप डोमिनेट नहीं कर सकते, मतलब वन रिलीजन डोमिनेटिंग द अदर, या फिर विद इन रिलीजन एक रिलीजन के अंदर कोई सेक्शन किसी को डोमिनेट कर रहा है, अगर ये कर रहे हैं तो वो सेक्युलरिज्म नहीं है। तो ऐसी जो डॉक्ट्रिन जो इसको अपोज करती है वो सेक्युलरिज्म। और मेरे को की टर्म्स क्या याद आ रहे हैं, जो इंडिया में होता है सर्वधर्म संभव, या कंप्लीट सेपरेशन नहीं है इंडिया में, देयर इज अ प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच कि अपन रिलीजन्स के, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स आपको याद आएंगे। फिर मेरे को क्या चीज आती है, एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसने बोला था कि ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ 2.5% रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स का, तो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कम है, ये इश्यूज में आ जाएगा। चैलेंजेस है, थ्रेट्स हैं, आप ये भी याद रखिए, जो नेगेटिव्स हैं और पॉजिटिव एग्जांपल्स भी याद करिए। ये हर चीज में आप ट्राई करिए। इंडिया में हर चीज नेगेटिव नहीं हो रही है, पॉजिटिव भी बहुत चीजें हो रही हैं जो सेक्युलरिज्म को मेंटेन कर रही है। अब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा, सेक्युलरिज्म में जब पार्लियामेंट का फाउंडेशन रखा गया था ना, नई वाली पार्लियामेंट का, तब एक ऑल फेथ प्रेयर की गई थी। सारे जो रिलीजन्स हैं उनके गुरुज वगैरह वहां पे आके बैठे थे और हर फेथ ने एक साथ प्रेयर करी थी कि ये फाउंडेशन रखने के लिए। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है जो इंडियन सेक्युलरिज्म को दिखाता है और पॉजिटिव फॉर्म में दिखाता है। या फिर आप देखेंगे कोविड में मल्टीपल एग्जाम्पल्स थे, एक रिलीजन के लोगों ने दूसरे रिलीजन के लोगों को हेल्प किया। या सिख में आप देखेंगे जो ऑक्सीजन लंगर्स थे। तो इंडिया में एक चीज बोली जाती है इंडिया के बारे में, whatever you say about India, the opposite is also true. Whatever you say about India, the opposite is also true. तो आप पॉजिटिव साइड को भी देखिए हर चीज में, क्योंकि अपन न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या फिर अपन लोगों के साथ रहते हैं तो सिर्फ अपने को नेगेटिव 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 लगता है। तो आप पॉजिटिव एंगल्स भी लेके आइए। आप सेम आप दूसरी चीजों के लिए भी कर सकते हैं। आप कैग है, कैग, या फिर आप कोई और इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, कैग पढ़ रहे हैं, फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, तो आप कैग के बारे में कुछ पॉजिटिव एक दो एग्जांपल भी याद रखिए कि यार कैग है वो UN का ऑडिट भी करते हैं, उन्होंने एक बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी भी बनाई थी 2016 में आई थिंक। तो जब आपको एक क्वेश्चन आएगा अगर बहुत नेगेटिव आता है तो आप उसको एंड में ये ले जा सकते हैं कि सर कैग बहुत अच्छी चीजें भी कर रहे हैं, फ्रॉड्स भी पकड़ रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन ही गड़बड़ है। आपको समझा? फिर सेक्युलरिज्म में आप जा रहे हैं तो आपने कंक्लूजन में कुछ कोट याद कर लिया कि गांधी जी ने बोला था कि सपोज सोल ऑफ रिलीजन इज वन, इट इज इनकेस्ड इन मल्टीपल फॉर्म्स, कि सबकी रिलीजन की सोल एक ही है, बस अलग अलग फॉर्म्स में है। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट? तो जैसे आपने की टर्म्स याद करे, तो ये अब इसमें सोचता है 3-4 चीजें मुझे याद हैं, 3-4 चीजें मुझे नहीं याद है, तो जो मुझे नहीं याद है सब उसी का आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, राइट? तो वो आपको सेम गोज फॉर ऑप्शनल। So also, sir, you mentioned that even I have realized that the amalgamation part, especially the questions which are of double balance sheet, even sir mentioned that the ranker sir, we have to do some kind of 80% of the content in a best way, and we can skip that as per your strength and weaknesses. So if I am skipping that amalgamation, then it is, as you mentioned it, I have to do compulsorily taxation or a part income. Yeah. So देखो टैक्सेशन आप टैक्सेशन नहीं छोड़ सकते, बट एक आप अपना जितना क्या बोलते हैं जितने हथियार लेके जाएंगे उतना बेटर होगा ना ऑप्शन में। अगर आप कर ही नहीं पा रहे हैं, उसको नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बट अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि यार मैं अमेलगमेशन नहीं करूंगा, मैं टैक्सेशन का न्यूमेरिकल नहीं करूंगा, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन तो एलिमिनेट ही हो गए।
सेक्शन ए में, फिर आपके पास तीसरा क्वेश्चन है वो आपको करना ही करना है, चाहे वो आपको आता है चाहे नहीं आता है। एक अपने कभी कभी क्या होता है, अगर अपन थोड़ी प्रिपेयर करके जाते हैं ना, कभी कभी वहां पे सिंपल क्वेश्चन फंस जाता है। टैक्सेशन में सिंपल क्वेश्चन फंस गया, तो हो सकता है आप बेसिक पढ़ लेते, आप वो कर लेते, उसकी थ्योरी भी इजी थी, वो जल्दी भी हो जाता और पेपर कंप्लीट कर जाता। तो एटलीस्ट अपन अपनी जितनी वाइड अपनी हथियार होंगे, वेपन्स होंगे, उतना अपन बेटर प्रिपेयर है ना बैटल के लिए। ट्रू। बस वो मेरा लॉजिक है, बाकी आपको अपनी कॉम्पिटेंसी के बेस पे ही चूज करना पड़ेगा। सर वो तो मेरे को जस्ट टाइमिंग का ही था, इट्स नॉट दैट कि एक्यूरेसी एंड ऑल, क्योंकि टाइमिंग का आई also feel that the taxation will be more viable to do आपको करना है चीजें, अपने को वो प्रूव नहीं करना अपने को आता है, अपने को पेपर खत्म करके उसको एक्यूरेटली करना, क्योंकि तभी आएंगे ऑप्शनल में 145-150 पेपर 1 में स्पेशली। Okay, so that's all. Yes, sir. Okay. All right. Thank you so much, sir. Yes, Jinesh Kanani. जिनीश आप? हेलो। हाँ जी बताइए। यस बताइए। सर मेरा 25 में फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैंने पीएससी का मेंस लिखा है, मेरे स्टेट का अभी मतलब लिखने वाला हूँ। ठीक है। तो डाउट है कि मेरा GS3 और GS4 और GS2 हाफ डन हो जाएगा दिसंबर तक, बट सर मैंने करंट अफेयर, मुझे 2 फोमोज है, एक करंट अफेयर को लेके और एक मेंस को लेके, कि मैंने कुछ ज्यादा ही मेंस के लिए प्रिपेयर कर दिया है और मैंने करंट अफेयर बराबर किया ही नहीं है। तो प्रीलिम्स में सर ये सफिशिएंट रहेगा इतना? अभी और क्या कर रहे हैं आप करंट अफेयर्स में? सर मैं करंट अफेयर में एक्चुअली नहीं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, खाली ऐसे वीडियो लेक्चर्स वगैरह वही देख रहा हूँ, क्योंकि तो मेरा अभी देखो सर, मैंने GS3 और GS4 एकदम कम्प्लीटली डन हो जाएगा मेरा दिसंबर तक, और GS2 भी हाफ डन हो जाएगा। तो GS3 में आपने करंट अफेयर नहीं करे? अरे सर मैंने सारथी IAS का मटेरियल फॉलो कर रहा हूँ, उसमें जो सर ने दिया है ना, मतलब वही कंप्लीट से एकदम। हाँ ठीक है, वो एग्जॉस्टिव है अगर, तो फिर कोई इशू नहीं है। अब जैसे करंट अफेयर्स को आपको ये समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट नहीं है इस पेपर में, पहली बात। यस सर, मुझे भी वही लगा। हाँ, तो और करंट अफेयर्स को आप एनालाइज करिए किस एरिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग। यस सर। सेकंड थिंग, करंट अफेयर्स इज ओनली 10% ऑफ दिस पेपर। यस सर। इसको मत बनाइए कि यार बेसिकली उसके पीछे ही लगे रहना है, कितना उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। तो आप उसको एक स्ट्रेटेजिकली करिए। अब जैसे करंट अफेयर जो है, जब आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे तब आप PT 365 उठा रहे हैं या फिर आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, उससे भी आपका करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन होगा। वहां पे आपका जरूर क्वेश्चन गलत होगा जो आप टेस्ट सीरीज करते हैं, बट टेस्ट सीरीज में पूछे गए क्वेश्चन को आप प्रिपेयर तो कर लेंगे ना? यस सर। हाँ, तो वो रिवर्स लर्निंग है। राइट, बताइए क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रहे हैं। हेलो। हाँ अब आ रही है, बताइए। हाँ सर, मैं एक्चुअली PTC 365 भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिविन सर ने बोला है कि वो कवर करवा देने वाले हैं पूरे साल का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वगैरह जो है वो। सो क्या मैं उस पर लाइक ब्लाइंडली रिलाई कर सकता हूँ? मेरा थोड़ा ये क्वेरी थी। नहीं, आप एक बार उसको पढ़ के देखिए जो सर पढ़ा रहे हैं। मैं तो नहीं बता सकता कि वो क्या पढ़ाएंगे, कितना कवर करेंगे। ओके सर, ओके। PT 365 वगैरह या फिर जो भी मेन 365 जो बुक्स आते हैं, फिर कोई भी एनुअल कंपाइलेशन है, उसको भी कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता है। यस सर। सारथी IAS वाले सर ही हैं, ये लोग एक 5 स्टार कैटेगराइजेशन डालते हैं प्रीलिम्स का, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। तो ये मैंने लास्ट ईयर अपने चैनल पे भी डाला था जब सर ने पोस्ट किया था, ये अपने खुद के चैनल पे भी सर डालते हैं। तो उस तरीके से आप उसको फिल्टर आउट करिए। पहले आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए। यस सर। है ना? उस तरीके से आप करेंगे तो आपकी काफी चीजें लोड कम हो जाएगा। और स्ट्रेटेजिकली करिए, सब कुछ नहीं सर। मतलब देखो, लाइक करंट अफेयर में सबसे ज्यादा पोर्शन जो एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर वहां से ही आते हैं, मतलब
ज्यादातर पोर्शन जो मैं कवर कर सकता हूँ मेरा, क्योंकि ऑप्शनल भी मेरा एग्रीकल्चर ही है। सो मैं बाकी सारे करंट बहुत कम रिलाई कर रहा हूँ हाँ ठीक है बाकी ना, सब्जेक्ट को। जो एरियाज इंपॉर्टेंट है उनको आप नहीं छोड़ सकते ना। अब हाँ करंट सर, अफेयर वो में तो कि यार नारी शक्ति अधिनियम जो आया था, ठीक है, हम्म। वो उसका कौन सा अमेंडमेंट था, वो उसमें कौन से आर्टिकल चेंज करे, यस सर, क्या मुझे नहीं इम्पैक्ट है। पता। हाँ तो अब ये एकदम करंट अफेयर ओरिएंटेड हो गया टॉपिक, तो ये यस। यूजुअली सर ने इसको 5 स्टार मार्क किया होगा। तो पॉलिटी में अब बाकी अगर मैं आप क्वेश्चन पूछूं गवर्नर पे, प्रेसिडेंट पे, तो आप वो आंसर कर लोगे। तो यस सर। उस पे करंट अफेयर पढ़ने का कोई सेंस नहीं है अगर वो उसमें कवर्ड है तो। हाँ। समझा, आपको डिफरेंस समझा? यस सर। हाँ, मतलब आपका कहना ये है कि जो स्टैटिक पोर्शन से जो करंट अफेयर है उस पे ज्यादा रिलाई ना करूं, और जो हाँ मतलब उस क्या पर कुछ बचा। नया नया चेंज हो रहा है उस पे ज्यादा ध्यान दूं। जिसके किसके ज्यादा चांसेस है आने के, तो वो सर ने फिल्टर आउट करा है। आप उसमें से भी फिल्टर आउट कर लीजिए कि यार ये टॉपिक मेरे को आता है, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी ओके। है। हाँ मतलब सर, वो मेहनत तो है। करने की कमी नहीं है, टाइम की हमेशा कमी रहेगी। तो आपको करना हर चीज हम्म। स्ट्रेटेजी पड़ेगी। यार मेरे पास 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, मेरे को पीटी निपटाने हैं। अब 4 घंटे हम्म। में या तो एक तरीका है मैं स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाऊँ, या फिर है कि यार हम्म। मैं पहले मेन टॉपिक पढ़ लूँ, फिर उसके बाद कम इंपॉर्टेंट वाले, उसके बाद सबसे कम इंपॉर्टेंट वाले, बराबर है सर। इस क्योंकि तरीके। देखो सर, मैं कोई अब उनको मैंने सर से सीखा है तो मैं उनका बात बोल रहा हूँ। मैं कोई प्रमोशन ऐसा नहीं करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि सर ने एग्जाम क्लियर कर रहा है तो शायद उसका बेटर जजमेंट होगा मेरे से, क्योंकि मैंने तो अभी आज तक किया नहीं है कुछ, इवन मैंने दिया भी नहीं है। बेटर होगा क्योंकि उन्होंने जैसे मेंस मैन कर रहा था लास्ट ईयर प्रिपेयर, तो साइंस एंड हम्म। टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन उठाया। वो मेंस इस हम्म। में एक फ्रेंड के साथ बैठा कि यार अपन फिल्टर करते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हम उसमें टॉपिक अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से मार्क कर रहे थे कि यार ये 5 स्टार लग रहा है, इसका बेसिक देख लेते हैं, इसका ये 5 स्टार है ये है। उस पे हमने उस पे मार्क किया था। ये जो क्वेश्चन आया था ना, हबल टेलीस्कोप और वो सब पे, तो ये हाँ मेन हाँ। सिर्फ आधा पेज का वर्ड था। बट यस यार मैं सर। फ्रेंड के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था, मैंने बोला यार यूपीएससी स्पेस पे पूछता भी है, और लास्ट ईयर इन्होंने, लास्ट नहीं मतलब पास्ट में इन्होंने जूनोज मिशन पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है, GS1। हम्म। मैंने बोला यार ये हम्म। हबल टेलीस्कोप देख लेते हैं क्या है डिफरेंस है। और वो हम्म। एग्जैक्ट फंस गया। तो कभी कभी आपकी ओके। चीजें एग्जैक्ट फंसती हैं, कभी कभी आपका कुछ भी नहीं फंसेगा एरिया का। हाँ, वो तो है। बट इस प्रोसेस का बेनिफिट क्या है कि आपने क्योंकि इसको प्रोसेस एक बार करी है ना खुद से, तो आपको पता है कि आप ऑन एन एवरेज लोगों से बेटर आंसर लिख लोगे, यस सर, वो बात तो है आपकी। क्योंकि आप एक तो आप बेटर प्रिपेयर्ड हो, हम्म। और क्योंकि आप उसको कंटेक्स्ट एज अ कंटेक्स्ट भी यूज कर सकते हो बहुत जगह। जैसे पीटी और हम्म। मेंस पढ़ते हैं जब, तो इसमें ना वाई न्यूज होता है। यस सर। वाई न्यूज होता है, कभी कभी आपका स्टैटिक पोर्शन का यूसेज नहीं है, बट वाई न्यूज को आप अपने क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन बना सकते हो, या फिर ओके सर। आप उसको स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हो। हम्म। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, और सिक्योरिटी का मेन 365 था। सिक्योरिटी की मेन 365 में सपोज हाइब्रिड हाइब्रिड वॉरफेयर का आपको कभी मेंशन करना है, हम्म। ठीक है, तो सपोज इस बार आप देखेंगे तो आर्मी चीफ ने जो रायसीना डायलॉग होता है उसमें हाइब्रिड वॉरफेयर के हाँ। बारे में बात की थी। तो ये इतनी सी बात है, ये वाई न्यूज वहां पे डाला होगा हाइब्रिड वॉरफेयर पे। हम्म। तो आप इसको एज अ कंटेक्स्ट अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो अगर हाइब्रिड वॉरफेयर पे क्वेश्चन आ गया, या फिर आप कोई पॉइंट सब्सटेंशिएट करने के लिए लिख सकते हो कि यार आर्मी चीफ ने भी इसके ऊपर स्ट्रेस किया है, तो ऑफ कोर्स आपका एक बेटर आउटलुक आ जाएगा उधर। ओके सर। और सर मेरी एक और क्वेश्चन था कि अगर हम ऐसे वाही न्यूज़ लाइक ऐसे इंट्रोडक्शन ना दे सके, पर हमें कोई पता है कि लाइक कोई इम्पोर्टेंट स्पीयर का कोई डेटा, फॉर एग्जांपल वाटर स्ट्रेस की कंडीशन क्या है अपने इंडिया में, तो वो डेटा डाल दे तो चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेटा भी डालना है। कोई कंटेक्स्ट आपको पता है तो कंटेक्स्ट पकड़ लीजिए। अभी मैं मतलब देखो सर, रेज है। वाटर स्ट्रेस की बात की थी बेंगलोर में, तो उनका वाटर स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। तो पर हम्म। मुझे पता नहीं है कि वो न्यूज़ में क्यों था, बेंगलोर की सिचुएशन थी उसके कारण था। बट मैंने एक एडीआई करके जो रिपोर्ट देते हैं तो वाटर वाटर स्ट्रेस की पूरे वर्ल्ड में, तो उन्होंने इंडिया का मेंशन किया है, तो मुझे वो रिपोर्ट का डेटा पता है, तो मैं उससे चालू करूँ तो लाइक हाँ सफिशिएंट कर है वो सकते चीज़, हैं। या फिर?
ज्यादा डेटा इंटेक्ट वो बेंगलोर वाली केस स्टडी में ही रहेगा। करेक्ट। आप अगर क्वेश्चन का डिमांड उस तरीके का है तो आप इंट्रोडक्शन में एक लाइन कंटेक्स्ट का भी डाल दीजिए कि इंडिया में भी वाटर स्ट्रेस का बहुत लेवल है और रिसेंट भी वाटर क्राइसिस जो हुई बैंगलोर में, जिससे डे जीरो देखा गया। डे जीरो होता है कि एकदम पानी की एकदम शॉर्टेज आ हाँ, जाती है। पानी मतलब है ही नहीं हाँ, तो वो। डे जीरो देखा गया। उस तरीके से आप एक की टर्म ड्रॉप कर दीजिए वहां पे, तो बढ़िया हो जाएगा। ओके सर, और ओके। थोड़ा सा बाकी आपको मोल्ड करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सर। राइट, एक बार जो कल ग्रुप पे भी डाले थे क्वेश्चन, उनको भी मैं ब्रीफली देख लेता हूँ। यस सर। यहाँ पे और किसी का डाउट है? तब तक मैं एक बार वो क्वेश्चंस देख लेता हूँ। हाउ मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शन, ये मैंने एड्रेस किया है। स्टार्टिंग में डाउट पूछा था कि कितने टाइम में प्रिपेयर करना चाहिए ऑप्शन। तो बेसिकली आप एक सब्जेक्ट उठाइए, उसको चैप्टर बाय चैप्टर देखिए आपके कॉम्पिटेंसी के बेस पे कि आप उसको कितने टाइम में कर सकते हैं। जैसे एफए का मैं डिस्कस किया था कि 7-8 डेज में आप कर सकते हैं अगर आप पूरा टाइम उसको दे रहे हैं, तो उस तरीके से आप एग्जॉस्टिवली कर सकते हैं। कोचिंग जरूरी तो नहीं है, मैंने पेपर 2 के लिए जरूर लिया था एक सपोर्ट गौतम सूद सर का, जिससे मुझे अंडरस्टैंडिंग आई थी। पहले आप एक बार बेसिक बुक्स पढ़िए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट यूसेज है आपका कोचिंग का। और कोचिंग को आप सिर्फ फाउंडेशन कोर्स की तरह मत देखिए। कोचिंग को आपको कभी कभी किसी से टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, कभी हो सकता है किसी से मेंटरशिप का सपोर्ट लेना पड़े, कभी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आपको किसी के पास जाना पड़े, तो डिफरेंट डिफरेंट वो है। बट आप अगर आपका बेसिक बैकग्राउंड है कॉमर्स में तो आप एक बार स्टार्ट करिए। अगर आप अटक रहे हैं तो आप जरूर किसी कोचिंग का हेल्प लीजिए, क्योंकि कोचिंग से क्या होगा, थोड़ा सा आपका स्पीड बढ़ जाएगी, एक फाउंडेशन मिल जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। बट अल्टीमेटली तो आपको सेल्फ स्टडी करके उसको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा सब कुछ। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, ये सब आपके लिए कोचिंग नहीं करेगी, ये आपको ही करना पड़ेगा, कि क्योंकि इम्बाइब आपको करना है, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। फिर ये अनइंस्टॉल्ड पूछा है कि हाउ टू इफेक्टिवली मेक लिंकेजेस बिटवीन सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। विद इन पेपर 2 आपके ज्यादा लिंकेजेस आएंगे, या फिर विद इन पेपर 1 आप चीजें इंटरलिंक ज्यादा कर पाएंगे। बाकी ट्राई करिए सब्जेक्ट मैटर के कीवर्ड ज्यादा आप यूज करिए। अब जैसे पेपर 2 है, पेपर 2 में आप देखेंगे तो ओबी एचआरएम बहुत लिंकेज हो रहा है, क्योंकि ओबी बात कर रहा है पर्सनालिटी, मोटिवेशन और उसकी, ये सब चीजें एचआरएम में यूज होती हैं। और एचआरएम की चीजों पे इफेक्ट ओबी का आता है। फॉर एग्जाम्पल परसेप्शन है, तो परसेप्शन का इफेक्ट आएगा, आप कैसे लोगों को हायर कर रहे हैं उस पर इम्पैक्ट आएगा। परसेप्शन का इम्पैक्ट आएगा रिक्रूटमेंट के वक्त, सिलेक्शन के वक्त, राइट। और पर्सनालिटी का रोल आएगा कि आप पर्सनालिटी देख के कैसे जज कर रहे हैं पर्सन को उस टाइम पे, आप पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं सिलेक्शन में। और चैप्टर्स हो गए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को आप लिख कर सकते हैं इंडस्ट्रियल के डिस्प्यूट से। चेंज मैनेजमेंट है ओबी में, आपको कुछ चेंज लेके आना है तो आप ट्रेड यूनियन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं फॉर चेंज मैनेजमेंट। या फिर चेंज मैनेजमेंट को अपने जीएस में भी ले जा सकते हैं, इन एथिक्स केस स्टडीज, या फिर कुछ और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले। इस तरीके से आप लेके बैठिए कि पहले तो आप इंटर सब्जेक्ट ड्रॉ करिए कि विद इन माई सब्जेक्ट क्या लिंक हो रहा है, परसेप्शन का मोटिवेशन पे क्या इम्पैक्ट है, परसेप्शन का पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट है, परसेप्शन का चेंज मैनेजमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। सब पे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेंगे। पहले इसको लिंक करिए, फिर दूसरे उस पर ट्राई करिए। आंसर राइटिंग के लिए ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स तो नहीं थे, बट बेसिक आपको ध्यान रखना है, आईबीसी इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन रखना है, फिर उसके सारे पार्ट्स एड्रेस होने चाहिए क्वेश्चन के कि जो वो पूछे गए हैं। और क्या मैं इसमें वैल्यू एडिशन डाल सकता हूँ, कुछ कोड डाल सकता हूँ, क्या कुछ डेटा डाल सकता हूँ। अब जैसे म्यूचुअल फंड का अगर सपोज क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है सॉरी, फिर आपने म्यूचुअल फंड का एक आध दो डेटा याद कर लो कि यार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है आखिरी लास्ट 10 ईयर्स में 6 टाइम्स बढ़ गई है, या फिर इस बार कितने अकाउंट्स खुल गए एसआईपी या कुछ, किसी भी एक बेसिक डेटा याद कर लो, उसको बॉक्स में बना के डाल दो, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। रिविजन टेक्निक्स के लिए एक मैंने मैसेज डाला है, रिविजन टेक्निक्स किस तरीके से होना चाहिए, एक्टिव रिकॉलिंग, आप वॉइस क्लिप्स भी बना सकते हो अपनी खुद की। जैसे कुछ टैक्स का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता था, या फिर मैंने तो बहुत सारे पार्ट्स के लेके आए कि अपने नोट्स को पढ़ते हुए
मैं बस रिकॉर्डर ऑन कर देता था और खुद को पढ़ाता रहता था कि यार ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब मैं बिल्कुल पढ़ने का मन, मैंने उनको सुन लिया। तो ये भी एक रिवीजन टेक्निक है, और भी मैंने पास्ट में भी इस पर डिस्कस करी, आप उसको देख सकते हैं। इसका रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर ही दूंगा। प्रीलिम्स और सीसैट मोड में आप डिफरेंट टाइमलाइंस पे शिफ्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपका फर्स्ट प्रीलिम्स ही है, आपको थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा होगा, तो आप जैन से धीरे धीरे स्विच हो जाएंगे प्रीलिम्स में। अगर आप पहले मेंस लिख चुके हैं तो आप फेब एंड से भी स्विच हो सकते हैं, मार्च में 3-4 महीने में भी आराम से हो सकता है। तो उस हिसाब से आप स्विच करिए, सीसैट पे फोकस करिए। सीसैट का अप्रोच सिंपल रखिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, बेसिक आपको कंफर्टेबल है, तो आप हर वीक एक टेस्ट दीजिए सीसैट का पूरा टाइम में, 2 घंटे में। जो आपके मिस्टेक्स हैं उनको कवर करिए, उनके नोट्स बना लीजिए, और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। अगर आपको बेसिक्स में इशू आ रहा है तो आप कोई कोर्स कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियोस भी डले हैं, मैंने एक लिंक भी डाला था सर का, जिनके फ्री वीडियोस डले हैं, आप वो देख लीजिए। नहीं तो आप कुछ परचेज भी कर सकते हैं। 2026 एस्पिरेंट्स के लिए तो आई थिंक अभी आप सबसे पहले फाउंडेशनल अपने फोकस करिए कि फाउंडेशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पहले आप इनको स्टडी करिए कि ये मेरे कवर हो रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। फिर ऑप्शनल का आप एक लेयर प्रिपेयर करिए। ग्रेजुअली आप करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए मैं लिख लेता हूँ, इंटरव्यू के लिए कुछ स्पेसिफिक एक बार बनाऊं मैं, क्योंकि इंटरव्यू ने मेरे को काफ़ी हेल्प करा था इन गेटिंग दिस रैंक। क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में मेरे को 171 आए थे, एंड जिस ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल मुझे 205 आए थे, तो 34 मार्क्स का अच्छा जंप मिला था। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एज एन ऑप्शनल का भी ट्राई करता हूँ मैं कि इंटरव्यू में कैसे बनेगा। ये ठीक है, इंटरव्यू का मैंने लिख लिया है, कुछ सेपरेट ट्राई करता हूँ मैं। करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स मैं नहीं कर पाया था, तो मैं यूजुअली एनुअल कंपाइलेशंस पर रिलाई करता था, और उसमें भी बहुत स्ट्रेटेजिकली ही करता था। मैं बहुत ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन नहीं रख पाया था, टू बी ऑनेस्ट। और थोड़ा भी टाइम आपका जाएगा। अंजलि ने पूछा है कि सारा टाइम वीडियोस में और नोट्स में चला जाता है, तो इनिशियली लगता है ये टाइम, क्योंकि जैसे आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो टाइम अभी थोड़ा सा जाएगा इनिशियल पीरियड में। आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चन रिलेटेड देखिए, और उसको इम्बाइब करने की कोशिश करिए। अभी जाएगा थोड़ा सा टाइम इनिशियल फेज में। जीएस सब्जेक्ट्स आप पहले कौन से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप फाउंडेशन सब्जेक्ट्स करिए, उसके बाद आप डिटेल में जा पाएंगे। आईआर वगैरह आप पहले नहीं समझ पाएंगे जब तक आप पॉलिटी के बेसिक्स नहीं समझेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे, हिस्ट्री नहीं समझेंगे, राइट। साइंस एंड टेक एज अ सब्जेक्ट को आप कैसे टैकल करें बीइंग कॉमर्स में? आप जैसे साइंस एंड टेक तो थोड़ा एप्लीकेटिव होता है। आप हर टॉपिक है जो उसका आपके पास बेसिक, रोबोटिक्स है उसके आपके पास बेसिक नोट्स है, आईटी में क्या क्वेश्चन है, क्या की टर्म्स उसके साथ, और बेसिक आप से पीवाईक्यू लेके बैठिए प्रीलिम्स सेंट्रिक के लिए। मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि आप पीवाईक्यू लीजिए, आप उसका टर्म लीजिए, क्या आप गूगल करिए, उसमें 2-3 मिनट की वीडियो आपको हर टॉपिक पे मिल जाएंगे, आप वो देख लीजिए। तो आपको उससे क्या होगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पिक्टोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी फॉर साइंस, और आपको हो सकता है साइंस इंटरेस्टिंग भी लगने लग जाए। सब्जेक्ट्स आपको क्या टारगेट करना चाहिए कॉमर्स में? आई थिंक नहीं, सॉरी, प्रीलिम्स में आपको क्या टारगेट करना चाहिए बीइंग कॉमर्स बैकग्राउंड? आई थिंक ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा, बट आप देखेंगे तो पॉलिटी, इको, इसमें आपको 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो ये तो स्ट्रॉन्ग हेड्स हैं ही जो आपको टारगेट करना ही है। फिर उसके बाद आप आपके फोटे के हिसाब से धीरे धीरे उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। एनवायरमेंट के क्वेश्चन पिक कर सकते हैं, हिस्ट्री कल्चर के 8-10 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के क्वेश्चन आप पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो विदाउट पॉलिटी, इकोनॉमी पेपर को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो है ही स्टैटिक। अभी फेथ ने लिखा है कि इट इज गेटिंग डिफिकल्ट टू फिल 4 पेजेस इन थ्योरी क्वेश्चंस या फिर 3 पेजेस। ये मैं भी इस चीज से गुजरा हूँ, ये पेपर फिल करना, इसकी कैसे कंप्लीट करें। बट ग्रेजुअली आपका जब रिवीजन होता है ना, आपको कॉन्सेप्ट्स इम्बाइब होते हैं। अब जैसे आप बुक से पढ़ते हैं तो आप बुक्स पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यार सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पे पूरा आपने 2 पेज पढ़ लिए, या फिर दूसरे उस पर पढ़े। तो इस तरीके से आप चलते जाएंगे। बट आप रियलाइज करेंगे जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे
कि ठीक है फ्रॉइड पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी थ्योरीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उन थ्योरी का मुझे सिर्फ एक लाइन की समरी चाहिए जो मैं अपने क्वेश्चन में डाल सकूँ, उनको यूज कर सकूँ, राइट। तो आप उस तरीके से फिल्टर आउट करेंगे तो आपके प्रिपरेशन लोड भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे आप भरने लग जाएंगे, पेजेस भी भरेंगे, और एक पॉइंट आएगा जब आपके पास बहुत कंटेंट होगा, जगह कम पड़ जाएगी, भी स्टेज आएगी। तो आप अभी पढ़िए, अभी उसका स्ट्रेस मत लीजिए कैसे भरना है क्या करना है। अकाउंट्स का थ्योरी पोर्शन आप कोई भी कोचिंग मटेरियल से पढ़ लीजिए, आई थिंक वो बेटर रहेगा। और मैं अपने नोट्स भी डालता हूँ एक बार, थ्योरी के जो मैंने बनाए थे उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इंट्रो कंक्लूजन का मैंने अब डिस्कस भी किया है इसमें, करंट अफेयर्स का भी। आप जो वैल्यू एडिशन है ना, एग्जाम्पल्स और ये सब, इसको आप फर्स्ट चीज मत बनाइए, अभी पहले बेसिक करने के बाद इसको एज अ ग्रुप एक्टिविटी करिए, या फिर कोई कोचिंग का आपको मटेरियल मिल जाए उसको देखिए, मेरे नोट्स को स्किम कर लीजिए, वहाँ पे आपको काफी वैल्यू एडिशन मिल जाएगा इसमें। और जीएस में भी आप ट्राई कर सकते हैं कॉमर्स नॉलेज को यूज करने का, थोड़ा बहुत इको में यूज हो सकता है, थोड़ा बहुत आपका जो कंटेंट, जैसे इस बार ही क्वेश्चन आया था कि 4 लेबर लॉज, 4 लेबर जो कोड है वो कौन से हैं, क्या पॉजिटिव्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं उनके, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो ये तो अपना डायरेक्ट आईआर में पढ़ते ही हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, राइट। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं जो आपको कॉमर्स में कर देंगे, जीएस 3 में जैसे इस साल आया था। ओबी थ्योरीज आप एथिक्स में यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये ऑपरेंट कंडीशनिंग वगैरह है, ये सब तो उसमें पढ़ते ही हैं अपन, एटीट्यूड चेंज वगैरह करने के लिए। और आप किस टाइप के ओबी के थ्योरी को सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर फ्रॉइड वगैरह भी आप डाल सकते हैं, बट इतना स्कोप आपको शायद मिले नहीं वहां पे, तो बहुत ज्यादा इंटरलिंकेजेस तो नहीं है। ये श्रीवत्सा ने आई थिंक क्वेश्चन पूछा है कि ऑप्शनल अभी आप चूज करें, आई थिंक आपका ये डाउट सॉल्व हो गया होगा। ऑप्शनल यार, जैसे ऑप्शनल मैं चूज करा था, हो सकता है थोड़ा कॉमर्स ऑप्शनल कंपेयर टू अदर ऑप्शन थोड़ा कम स्कोरिंग है, बट अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपका प्रिपरेशन लोड एक तो कम होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग यार, मेरे को तो कॉमर्स पढ़ने में थोड़ा कंफर्ट आता था, जब जीएस से मैं थक जाता था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ज्यादा मेरा मूड नहीं हो रहा, तब मैं कॉमर्स पढ़ लेता था। तो एक ऑप्शन आपको कंफर्ट भी देता है, तो आप उस सब चीजों को एवेल्युएट करके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना। और कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं, उनसे स्कोर ही नहीं होता पेपर 1 में, उस टाइम पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। इनरिचमेंट के लिए मैंने आपको बताया धीरे धीरे वो हो जाएगा, अभी फर्स्ट फोकस मत रखिए उसको। जैसे टाइम मैनेजमेंट इन पेपर 1 ये इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। मैंने बताया पीवाई की उसको आप टाइमली मैनर में सॉल्व करिए। तो जैसे कोई क्वेश्चन आपने उठाया, 2 क्वेश्चन उठा लीजिए सपोज 20 मार्क्स के, अब आपको इसके लिए 14 मिनट्स मिलेंगे, आप सपोज 30 मिनट्स लीजिए। अब 30 मिनट्स में आप उसको करके देखिए क्लॉक रख के, फिर ऐसे आप ग्रेजुअली करेंगे, मिनी टेस्ट बनाएंगे एक दूसरे के लिए पीयर ग्रुप में, तो आपको उससे टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा पेपर में। अब सेकेंड एस्पेक्ट आता है कि कभी कभी आपके पास टाइम कोई क्वेश्चन में एक्सेस यूज हो जाएगा पेपर में, उसको कैसे मैनेज करना है। फिर आपको थोड़ा थोड़ा है ना कट शॉर्ट करना पड़ेगा ये जीएस में भी होता है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अब आप ट्राई करेंगे कि मैं 3 पेज भी भर लूँ थ्योरी में, वो नहीं हो पाएगा, आपको शायद 2.5 पेज पर रुकना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स में आपको क्रिस्प वे में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ेगा टाइम मैनेज करने के लिए। अब सपोज आपके पास आइडियली आपके पास 7 मिनट्स होते हैं 10 मार्कर के लिए, राइट, बट आपके पास हो सकता है लास्ट में सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट्स बचे हैं, तो उसको आप अडेप्ट करिए, 6 मिनट में लिखने का ट्राई करिए। अगर आप 7 मिनट में करेंगे तो कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, तो बेटर है कि आप वो करें। न्यूमेरिकल्स में मैंने डिस्कस किया, क्या स्किप कर सकते हैं। थिंकर्स का भी आप ब्रेनस्टॉर्म करिए किस तरीके से क्या यूज हो जाएगा। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आप, मैं ये बोलूंगा कि आप स्ट्रेटेजिकली ये कर सकते हैं कि आपके जो पहले एरियाज हैं आप आइडेंटिफाई करिए किस एरिया में आप कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने प्लान बनाते वक्त आपने देखा, आपको शेयर्स वगैरह करना है तो आप अगर जल्दी कर सकते हैं तो उसको 1 दिन में ही दीजिए। जो पीवाई की उसको पहले सेंट्रिक प्रिपेयर करिए, उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और अलाइन हो जाएगी। शॉर्ट पीरियड में आपको करना है, तो अगर आपके पास नहीं है टाइम, आपको किसी की हेल्प लेना है, मेंटरशिप लेना है, तो आप वो भी ले सकते हैं कि यार मेरे को बनाया मटेरियल मिल जाए, मैं इसको पढ़ लूँ। जैसे आप अजय ठाकुर पूछ रहे हैं कि यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन सबको कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करें, तो पहले अगर आपने
ग्रेजुएशन किया है तो थोड़ा सा आप ग्रेजुएशन का ही मटेरियल पढ़ लीजिए, नहीं तो आप कोचिंग का मटेरियल उठा के स्टार्ट करिए प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो उससे भी हो जाएगा। प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी का मैंने एक यूट्यूब पे भी वीडियो डाला है, और ऐसा नहीं है कि यार इसे सीए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो सीए नहीं है वो भी अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं ऑप्शनल, राइट। आई थिंक गरिमा अरोरा मैम ही थे, उनका भी अच्छा स्कोर था, 275 अराउंड स्कोर था। तो वो नहीं है, प्रैक्टिस से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब जैसे आप क्वेश्चन है कि ज्यादा टाइम आपने जीएस में दे दिया, आप उसको डिवाइड करिए। जीएस का आपका जितना हो गया है उसके अलावा थोड़ा सा टाइम ऑप्शनल को भी देते रहिए प्रिपेयर करने के लिए। थोड़ा सा जितना आप अभी अपना लोड कम कर लेंगे उतना आपका मेंस के दौरान टाइम बच जाएगा। प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने का मैंने एक डाला हुआ है, यूट्यूब पे भी वीडियो डाला हुआ है, और आप #प्रीलिम्स देखेंगे तो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रीलिम्स में मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बेसिक पिलर्स वही, आपको स्टैटिक पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज आपको करना है। थर्ड, आपको एक माइंडसेट चाहिए जिसके वीडियोस मैंने डाले हैं वरुण जैन सर के, आप वो देख लीजिए। और फोर्थ एस्पेक्ट है टेस्ट सीरीज और उसके नोट्स बनाने। तो इससे आपके नंबर भी बढ़ेंगे और उनको रिवाइज करिए। करंट अफेयर्स का यार फोमो मत रखो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। 10% है एग्जाम का, टारगेटेड करेंगे और उसको उस तरीके से करेंगे। आपने जीएस 3-4 कर लिया है एनोनिमस, और जीएस 2 हाफ हो गया तो बढ़िया है, आपके मेन एरियाज हो गए हैं, क्योंकि 3-4 ही अलग है। 1 का तो आपकी काफी प्रिपरेशन प्रीलिम्स के साथ भी हो जाएगी। यार अभी पेजेस वगैरह का इतना स्ट्रेस मत लो, जैसे धीरे धीरे कम हो जाएंगे। फिर आप जैसे जीएस 4 के आपके 80 पेजेस के नोट्स हैं, अगर तो आप उनको पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, फिर वो और कम हो जाएंगे, 20-40 पेज के रह जाएंगे। जब आप करेंगे उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको कंटेंट याद हो जाएगा और जो कीवर्ड्स हैं वो रह जाएंगे बस। तो अभी पेजेस वगैरह का इतना वो मत लीजिए। मतलब क्वेश्चन पूछा है लिमिटेशन ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, तो आपको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के लिमिटेशन भी लिखना है, राइट। शुड माय आंसर बी लिमिटेड टू लिमिटेशन ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और ओपन एडिशन डायमेंशन? आप क्या खोलेंगे इसमें? लिमिटेशन ही लिखने पड़ेंगे। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कॉस्टली बढ़ जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड उसमें वायलेट हो जाती है, वो सबसे पहला पॉइंट वही होना चाहिए। या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, टर्फ वॉर हो जाते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और फंक्शनल मैनेजर है उसमें बार बार रिसोर्सेज को नेगोशिएट करना पड़ता है रिसोर्सेज के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इश्यूज आ जाते हैं। मेन फिर प्रीलिम स्ट्रैटेजी मैंने एक बार डिस्कस करा ही हुआ है यार यूट्यूब पे। एक बार आपको और वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा मैं, होप। यूपीएससी और बीपीएससी का आपने डाला है कैसे बैलेंस करना है यार। ये मैंने स्टेट का एग्जाम नहीं दिया था, बहुत प्रॉपर वे में तो गाइड नहीं कर पाऊंगा मैं, बट आप टाइमलाइंस देखिए, अगर बीपीएससी का किस टाइम पे आ रहा है और यूपीएससी आपका किस तरीके से हो रहा है। कुछ पीरियड आपको यूपीएससी सेंट्रिक फोकस करना पड़ेगा। आप ट्राई करिए, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करिए, जो बीपीएससी का डिफरेंट एरियाज है उसको साइड बाय साइड करिए, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन से आई थिंक स्टेट एग्जाम्स पे एड्रेस हो जाने चाहिए। मेरे को इसमें थोड़ा आइडिया नहीं है, राणा सिंह। जानविका आपका क्या बैकग्राउंड है? अगर आपको इश्यू आ रहा है तो आई हैव अ लैक ऑफ क्लैरिटी एंड इवन वीक बैकग्राउंड इन कॉमर्स। एक बार आप कॉल लीजिए, आपको इसमें कंफर्ट आ रहा है कि आपको दूसरे उसमें कंफर्ट आ रहा है कॉमर्स में। अगर आपको नहीं अभी जम रहा है कॉमर्स, तो आप एक बार दूसरी चीज को ट्राई करके देखिए, 5 दिन 4 दिन पढ़ के देखिए, जो भी आपको दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है उसमें आपको कंफर्ट आ रहा है तो उसको करिए। टाइम तो आपको सब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपका चॉइस होना चाहिए आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, उसका स्कोरिंग पोटेंशियल कितना है, उसका मटेरियल कितना अवेलेबल है दूसरे ऑप्शन का, है ना, और कितना टाइम लग रहा है उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको इन चीजों को आप ध्यान रख के करिए। देखो टेस्ट सीरीज आप दे पाए तो बहुत अच्छा है ही, प्रीलिम्स के पहले कुछ एरियाज का वैसे दे लीजिए। अगर आप सब चीजों का नहीं दे सकते, जीएस 4 का लिख लीजिए, 3 का लिख लीजिए, अगर लग रहा है 2 का कुछ सिलेक्टेड पोर्शन लिख लीजिए।
डेली आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं तो वो भी बढ़िया है, वो कंपनसेट तो करेगी। बट एक टेस्ट सीरीज को आप बाद में भी दे सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज का क्या रहता है, आप जब फुल टेस्ट देते हैं ना तो आपको वो आपकी क्वालिटी डिग्रेड होती है बाद के आंसर्स में, फिर फटीग आता है 3 घंटे तक लिखने में, तो वो सब चीजें भी टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हैं, राइट। तो वो सब चीजों का फायदा रहता है उसमें। ओवरऑल आई थिंक मेजर डाउट्स एड्रेस हो गए हैं, और अपन फ्यूचर में और भी सेशन रख लेंगे टू डिस्कस मोर एंड मोर डाउट्स। आपके और डाउट्स हो तो आप पोस्ट कर देना, मैं वॉइस नोट से भी उसको एड्रेस कर दूंगा। आई होप दिस सेशन वाज फ्रूटफुल फॉर यू ऑल, एंड एक बार इसको एंड करते हैं, मेरे को भी थोड़ा सा कुछ काम से जाना था। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़िए और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और ये बीच का टाइम को वेस्ट मत करिए। जिन्होंने मेंस दिया भी है या नहीं दिया है, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला टाइम होता है ना, ये टाइम होता है जो आप सब मतलब मेजर लोग इसको वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत डल फेज होता है। कुछ नेक्स्ट एग्जाम अभी प्रीलिम्स बहुत दूर है, मेंस अभी हुआ ही है, इंटरव्यू के रिजल्ट्स आए नहीं है, तो ट्राई कीजिए, इसको वेस्ट मत करिए। मैंने भी पास्ट में इसको इस टाइम को वेस्ट किया है और इससे मेरे अटेम्प्ट्स बढ़ गए, है ना। तो आप इस टाइम को अच्छे से यूज करिए प्रोडक्टिवली। आप नहीं कर पा रहे हैं अगर सब कुछ, तो एटलीस्ट 1-2 पेपर को टारगेट करके उनको इस तरीके से कर दीजिए कि वो सीधा आपको मेंस के दौरान रिवीजन में आपको उठाना पड़े। ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। ओके, बाय।